welcome back. So today we are going to discuss chapter 2 from class 8 NCERT book, that is linear equation in one variable, right? Before starting the chapter, let me introduce few things about this chapter. Algebraic expressions. क्या होते हैं बेटा algebraic expressions? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ example लिख रही हूँ, then I'll explain. Suppose I have written example. If I have written 5x plus 2, right? 7x y plus y square, x plus y square. What is these? These all are algebraic expressions. ठीक है, x variable and y variable, right? So what is these? These all are algebraic expressions, right? Now, algebraic expression can be of two types. One, these are categorized as number one, linear, and number two, non-linear. Now what is this linear and non-linear? Linear means all the variables in the algebraic expressions are having power is equal to 1. ठीक है, क्या बोला मैंने? Power of variable should be 1. ठीक है, for example इन्हीं में से देखिए, मैंने यहाँ लिखा 5x, यहाँ x की पावर कितनी है? 1. तो दिस इज अ लीनियर algebraic expression. ऐसे ही मैंने लिखा 7x, दिस इज अगेन लीनियर algebraic expression बिकॉज x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1 है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन लीनियर. नॉन लीनियर क्या होते हैं? जहाँ पे पावर 1 ना होके मोर देन 1 होती है. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले पावर ऑफ वेरिएबल should be greater than 1. जैसे लास्ट एग्जाम्पल और सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिए हैं y प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे देखिए बेटा y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है. तो इज इट लीनियर? नो, इट्स अ नॉन लीनियर. हेयर ऑल्सो x प्लस वाई स्क्वायर, y की पावर कितनी आ रही है? यहाँ पे 2 आ रही है. तो दिस इज द नॉन लीनियर. तो इज इट क्लियर? लीनियर क्या होते हैं? जिसमें पावर की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है और नॉन लीनियर में मैक्सिमम पावर मोर देन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द algebraic expression. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज द इक्वेशन. द सेकंड थिंग इज इक्वेशंस. क्या होती है बेटा? देखो इक्वेशंस आर नथिंग बट द algebraic expressions बट विद इक्वालिटी साइन. ठीक है, देखिए algebraic expressions with equality sign. देखिए क्या मतलब है इससे मेरा? इक्वालिटी साइन के साथ जो algebraic expression होता है इक्वेशन कहते हैं. सपोज I have written 5x plus 4 is equal to 7. Now you can see here 5x is 4 is what? This is an algebraic expression, right? But here is an equality sign, equal and is equal to 7. So now it has become algebraic expressions along with equality. This is known as the equation. ठीक है, equations equal के बिना नहीं होंगी. अगर आपको equal 7 नहीं दे रखा है तो this is your algebraic expressions, not equation, right? Now same way equations can be of two types, linear and non-linear. जैसे अपन ने algebraic expression पढ़े थे 2 तरीके से, ऐसे ही इक्वेशंस भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, राइट? सो इन लीनियर सेम थिंग विल हैपन जैसा algebraic एक्सप्रेशंस में था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1. ऐसी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जैसे यही एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है. सपोज आई हैव रिटन x square plus 2 is equal to 7. So now you can see here the maximum power of x is 2. So is it linear equation? No, it's a non-linear equation. ठीक है, ये क्या है? non-linear equation है. और देखिए suppose मैंने लिखा 5 is equal to 8, x cube plus 5 is equal to 8. ये भी क्या है आपकी? ये भी एक non-linear equations है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों एग्जाम्पल में मैंने केवल एक ही वेरिएबल लिया है. ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल x एक ही है, यहाँ भी वेरिएबल x ही है, तो वेरिएबल एक ही लिया है मैंने, x वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड
linear equation in one variable. This is called non-linear equation in one variable. ठीक है. Now suppose I have written x plus y is equal to 3, right? X plus y is equal to 3. So now here variables are becoming 2, x and y. So this is the linear equation in two variable, right? And same way x square plus y square is equal to 6. This is what? Linear equation in non-linear equation in टू वेरिएबल. ठीक है. बट हमारी एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली. दैट्स व्हाई वी विल फोकस फॉर द वन वेरिएबल. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग अबाउट दैट इक्वेशन. ठीक है. इक्वेशन के बारे में कुछ और चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है. वो क्या है? देखिए, सबसे पहले जैसे सपोज मैंने लिखा 5x plus 4 is equal to 7, right? So this term 5x plus 4, this is called the left hand side of the equation, also called LHS. ठीक है. ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? जो इक्वल के लेफ्ट साइड में होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. इक्वालिटी के जो बाद में होगी, मतलब राइट में होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? RHS. दैट इज right hand side. Right hand side. And this is what? This is the equality. ठीक है. This is equality. This is LHS. This is RHS. Clear beta? So this thing you must know. Next thing about the equation which we have to discuss, that how to solve the equation. ठीक है. कोई भी इक्वेशन आपको दे दी, आपसे पूछेगा solve this equation. तो how to solve this? For this, let's solution of an equation. This is the third point. First case which we are going to discuss in this topic is linear expression on one side and number on the other side. Suppose I have written x plus 10 is equal to 8. Suppose I have written this expression. ठीक है. x plus 10 is equal to 8. This expression I have written. Now you have to solve this. आपकी बुक में क्वेश्चन कैसे आता है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है. तो आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दे देगा और कहेगा सॉल्व करो. सॉल्व करने से मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट? नाउ यू कैन सी हियर, इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड जो हम यूज करेंगे वो है बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड क्या कहता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के आसपास जो भी है उसे वहां से हटाना होगा. जैसे यहाँ x के पास क्या है? +10 है. तो x के पास +10 को हटाने के लिए मैं अगर -10 कर दूं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा? x रह जाएगा. चूंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में -10 किया है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए -10 करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 minus 10, दैट इज माइनस का 2. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू -2. व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? बिकॉज अगर हम x की -2 वैल्यू यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके LHS और RHS दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन है. अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आती उसे यहाँ रखने पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. दिस इज द बैलेंसिंग मेथड. डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं? जैसे मैंने लिखा x plus 10 is equal to 8, तो हम क्या करते हैं? x के पास जो भी टर्म है उसे उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, राइट? अब शिफ्ट करने का मेथड क्या है? जो भी नंबर शिफ्ट होके जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ तो क्या रह जाएगा? x. अब ये +10 है, +10 है, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -10. प्लस का नंबर है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का नंबर है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो x इज इक्वल टू -2. From both method you will get the same answer. ठीक है. This is the first part. Now case number 2, which are having linear expression on both sides. ये इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ. सबसे पहले सपोज मैंने लिखा 5x plus 2 is equal to 2x plus 7, राइट? 5x plus 2 is equal to 2x plus 7. इसे मुझे सॉल्व करना है. उसे सॉल्व करने का मेथड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल शफल ऑल द लाइक टर्म्स असाइड. हमें सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आना. लाइक टर्म्स का मतलब क्या है मेरा? कि जैसे ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो क्या दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं. ये 2 एक कांस्टेंट है, 7 भी एक कांस्टेंट है, ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म्स हैं. तो इन्हें शफलिंग करके एक साथ लेके आते हैं. तो लेट्स डू दैट. ये स्मॉलर है,
5 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम क्या करते हैं 2 की शिफ्टिंग यहाँ कर देते हैं। तो देखिए अभी मैंने शिफ्टिंग का तरीका बताया, जब भी शिफ्टिंग होगी गिवन नंबर पे जो भी साइन होता है उसका रिवर्स साइन होके आपका शिफ्टिंग के बाद आएगा। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो उसका साइन क्या मानेंगे आप प्लस, तो +2 7 इधर आएगा तो क्या बनेगा -2 7। बीच में अभी यहाँ पे +2 हो रहा है, चलो मैं लिख देती हूँ +2 हो रहा है, और यहाँ क्या बचा 7, राइट। सो 5x - 2x यू विल गेट 3x। नाउ +2 इज हियर, मुझे केवल x की टर्म चाहिए सोल्यूशन के लिए। अब +2 यहाँ पर है तो इसे हम यहाँ ले जाए, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दें, तो +2 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा -2। सो 3x इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो 3x इज इक्वल टू 5। अभी भी मुझे x नहीं मिला, मुझे क्या मिला 3 मिला। तो केवल x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 3x/3। अब चूंकि आपने लेफ्ट साइड में डिवाइड किया है तो बैलेंसिंग के लिए हम राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे, तो 3 से 3 गया, x इज इक्वल टू 5/3। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, x के साथ 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5/3। दिस इज योर केस नंबर 2। नाउ केस 3 रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। इस टॉपिक के अंदर क्या है बेटा, आपको जो इक्वेशन दी जाएगी उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की फॉर्म हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन को इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन। नाउ यू कैन सी दिस एग्जांपल, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँ, राइट हैंड साइड को भूल जाइए एक बार के लिए, केवल लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 6x + 1/3 + 1, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दूँ, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, राइट। सो 3 1 जा 3, 6x + 1 6x + 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 3 जा 3, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ क्या आ गया +3, राइट। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x + 3 + 1 4/3। तो ये मेरे पास अब लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, राइट। सो लेट्स रीराइट दिस क्वेश्चन अगेन। अब ये पूरी टर्म मेरे पास क्या बन चुकी है 6x + 4/3, दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 3/6, ठीक है। नाउ ये आपके पास एक फॉर्म बन चुकी है, जबकि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको इसे इस फॉर्म में लेके आना होगा, a/b इज इक्वल टू c/d की फॉर्म में लेके आएंगे। इस फॉर्म में लाने का बेनिफिट क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन फास्ट, राइट। सो लेट्स डू दैट। 6 is here, 6 will multiply these full terms, 6s + 4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 6s multiply with full term 6s + 4, ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में क्या साइन है इक्वल। नाउ 3 is multiply by x - 3, तो x - 3 को भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट। तो नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, तो 6 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी a × b + c इज इक्वल टू a × b + a × c, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो 6 × 6x + 6 × 4 इज इक्वल टू 3 × x इन -3 × 3, ठीक है। सो यू विल गेट 6 6 जा 36x + 24 3x - 9। सो नाउ दिस फॉर्म इज योर फॉर्म ऑफ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैंने सेम ये फॉर्म आपको बताई थी, लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड। अब वही फॉर्म बन चुकी है, क्या करेंगे हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे और इसको सॉल्व करते हैं।